Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Concept Classes. Hope all of you are doing well. And in this video, I'm going to discuss some numerical problems based on mole concept. So as you know, in the previous video of chemistry, I have discussed mole concept, in which I have discussed what is a mole, and I have also discussed some important terms related to mole concept, and I have also solved one problem based on mole concept. And in this video I will try to solve 3 or 4 problems based on mole concept so that you can easily understand this topic. Okay, so without wasting time, let us start. So as you can see, 1 mole. So if for an atom of an element, अगर हमारे पास किसी एलिमेंट का कोई एटम है तो हम 1 मोल कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है. एंड इन दिस फ्लो चार्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट व्हाट इज 1 मोल फॉर एन एटम. अगर मैं एक एटम की बात करता हूं पर्टिकुलर एलिमेंट की, फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन एटम ऑफ सोडियम, सो 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू हाउ मच. तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक फ्लो चार्ट है, आप देख सकते हो. सो 1 mole of an atom of an element is equal to ग्राम एटॉमिक मास. तो किसी भी एटम का जो 1 मोल होगा वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा, और 1 मोल ऑफ that element contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms of that element. For example, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम, आप सोडियम का 1 मोल लो, सो हाउ मच यू टेक, यू विल टेक 23 ग्राम ऑफ सोडियम. चलिए मैं आपको ये समझाता हूं. मैंने आपको बोला कि 1 मोल ऑफ सोडियम, आपको 1 मोल ऑफ सोडियम लेना है. सो 1 मोल ऑफ सोडियम इज हाउ मच, 1 mole of sodium is equal to the gram atomic mass of sodium. So the gram atomic mass of sodium is 23 gram. Okay, so 1 mole of sodium is equal to 23 gram, and which is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms of sodium. तो अगर हमसे कोई बोलता है कि 1 मोल सोडियम कितना होगा, सो इन टर्म्स ऑफ मास, तो मास की टर्म्स में आप बोलोगे सो 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम. And in terms of number of atoms, you will say 1 mole of sodium is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms of sodium. So 1 mole को आप दोनों terms में define कर सकते हो. Either you can define in terms of mass and or you can define in terms of number of atom. So this flow charts basically tells us 1 mole for atom of an element. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, if we have, अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, मेरे पास कोई सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल आई हैव सम मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के केस में हम 1 मोल कैसे डिफाइन करते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस 1 मोल फॉर मॉलिक्यूल. सो यू कैन सी 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मैं 1 मोल लेता हूं तो कितना मास होगा उसका, दैट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास. और 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल कंटेन्स हाउ मच मॉलिक्यूल्स, you know Avogadro number of molecules, which is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules. So 1 mole of any molecule, any substance, always equal to this much molecule. For example, let us take an example. We have water. So we have water, हमारे पास water है, तो water का 1 mole कितना होगा. So 1 mole of water, तो हम एक example लेके समझ रहे हैं, हमारे पास water का 1 mole है. So water का 1 mole कितना होगा. So what is the mass of 1 mole of water? The mass of 1 mole of water will be 18 gram, because 18 gram is the gram molecular mass of water. And similarly 1 mole of water contains how much molecules of water? अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर आप पानी का 1 मोल लेते हो तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, पानी के 1 मोल में, सो यू कैन से 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water. So you understand? So this particular flow chart is for molecules and the previous flow chart is for atom. तो 1 मोल किसी भी एटम का एटॉमिक मास के इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास के, और कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. 1 मोल किसी भी मॉलिक्यूल का कितना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. समझ आया.
ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था और अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स के लिए एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझा रहा हूँ, सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फंडा होता है वो क्या होता है, समझ आएगा तो मजा आएगा। वी वर्क्स बेसिकली ऑन दिस टाइटल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास कोई गैस है, मान के चलिए, मैंने आपको एटम्स के लिए बता दिया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फॉर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एंड इफ we have some gas, so how can we define 1 mole for a gas? So 1 mole of any gas is equal to 22.4 liter at STP। देखिए, जब आप किसी एटम या मॉलिक्यूल को लेते हो तो आप उसका मास लेके चलते हो। फॉर एटम यू हैव ग्राम एटॉमिक मास, फॉर मॉलिक्यूल यू हैव ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जो गैसेस होती हैं, गैसेस का बेसिकली वॉल्यूम होता है, गैसेस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। सो इन केस ऑफ गैस वी विल कंसीडर वॉल्यूम, ठीक है, एंड फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वी विल कंसीडर देयर मास। ठीक है, गैस के केस में वी हैव टू टेक देयर वॉल्यूम बिकॉज गैसेस हैव वॉल्यूम लाइक 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। ओके, ठीक है, तो आप किसी भी गैस का 1 मोल ले लो। सो वट एवर बी द गैस, फॉर एग्जाम्पल यू हैव हाइड्रोजन गैस, यू हैव नाइट्रोजन गैस, यू हैव ऑक्सीजन गैस, सो यू कैन टेक एनी गैस, that gas will always occupy 22.4 liter if you take 1 mole of that gas। मतलब अगर आप किसी भी गैस का 1 मोल लेते हो तो वो हमेशा इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये एसटीपी क्या होता है? अब आपको पता है कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो प्रेशर चेंज हो जाता है, प्रेशर चेंज करते हो वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो अगर आप गैस के केस में कोई भी कंडीशन चेंज करोगे तो बाकी कंडीशन चेंज हो जाती है। तो जब भी हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे डिफाइन करते हैं। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो यू हैव स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, सो फॉर अ गैस, जो गैस के लिए आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो आपका 298 केल्विन होता है, और जो आपका स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो आपका 1 atm होता है, 1 एटमॉस्फेरिक होता है। ओके, समझ आया? सो दिस इज एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो आप कोई भी गैस ले लो, चाहे आप हाइड्रोजन गैस लेते हो, चाहे नाइट्रोजन गैस लेते हो, चाहे ऑक्सीजन गैस लेते हो, चाहे अमोनिया गैस लेते हो, चाहे आप सल्फर गैस लेते हो, वट एवर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हो, कोई भी आप गैस लेके चल लीजिए, हमेशा 1 मोल ऑफ दैट गैस विल ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, हमेशा इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 1 मोल ऑफ एनी गैस। और अगर 1 मोल ऑफ कोई भी आप गैस लेते हो तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उस गैस के? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा। सो 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम, एंड 1 मोल ऑफ एनी गैस will always contain 6.022 into 10 to the power 23 molecules। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं एक फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए, इस फॉर्मूले को समझाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं जिससे फॉर्मूला आपको समझ आएगा फॉर्मूला कैसे लिखा मैंने। अच्छा, मान के चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 46 ग्राम सोडियम में कितने मोल्स होंगे सोडियम के। So 46 gram of sodium, so we have 46 gram of sodium, तो ये how much mole of sodium के इक्वल होगा? 46 ग्राम कितने मोल के इक्वल होगा? तो देखिए, सीधी सी बात है, जब भी आपको ये पता लगाना है कि इतने ग्राम कितने मोल के इक्वल होगा तो हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन 1 मोल। सो if you are doing any numerical problem, then first of all what you have to do, you have to define 1 mole for that element or that compound। So here is sodium, so first you have to define 1 mole of sodium। so 1 mole of sodium is equal to, you know, gram atomic mass, that is 23 ग्राम, है ना। सोडियम का एक मोल कितना होता है? 23 ग्राम। तो देखिए 23 ग्राम किसके इक्वल होता है? 1 मोल के इक्वल होता है। तो 1 ग्राम कितने के इक्वल होगा? 1/23 के इक्वल होगा। ठीक है, एक मिनट में आपको समझाता हूं ये। देखिए, सो 23 ग्राम जो सोडियम है, 23 ग्राम सोडियम किसके इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल होगा, बिकॉज 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास।
तो 1 ग्राम सोडियम किसके इक्वल होगा? 1 ग्राम सोडियम इज इक्वल टू 1/23 मोल। और कितने का पूछा है? 46 ग्राम सोडियम का, तो कितना हो जाएगा? 46/23, दैट इज इक्वल टू 2 मोल। कितना मोल हो गया? 2 मोल हो गया। तो जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमेशा केमिस्ट्री में काम आएगा। सो वेन एवर यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट यू हैव टू डू? You have to find the ratio of, this is called given mass and this is called molar mass। देखिए आपने यहाँ पे क्या करा है, यू हैव अप्लाइड यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि 23 ग्राम का 1 मोल है तो 1 ग्राम का कितना होगा और 46 ग्राम का कितना होगा, है ना। यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको, कि जहां पे 23 में इतना, 1 में इतना, 46 में इतना। अगर मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूला की टर्म्स में बोलूं तो आपने करा क्या है, जो मास आपको गिवन था आपने उसको डिवाइड कर दिया किससे? मोलर मास से। क्योंकि सोडियम का मोलर मास कितना होता है? 23 ग्राम होता है। आपको याद हो तो इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट। मतलब अगर आप सोडियम का 1 मोल लेते हो तो उसका जो मास होगा डेट विल कॉल्ड मोलर मास। मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम का जो मास होगा डेट विल मोलर मास। नाम से पता लग रहा है मोलर मास मतलब मोल का मास। तो 1 मोल सोडियम का मास कितना होगा? मोलर मास दैट इज 23 ग्राम। समझ आ रहा है? तो यहां पे हमने 2 मोल्स निकाले। सो इन दिस प्रॉब्लम व्हाट वी हैव फाइंड, वी हैव फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अगर मैं यहां से फॉर्मूला बनाना चाहूं तो क्या होगा? देखिए ये तो यूनिटरी मेथड है, कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बोलूं, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला रिप्रेजेंट करूं तो आपने क्या करा है? 46 को डिवाइड कर दिया किससे? 23 से। अब एक बात बताइए, 46 को 23 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिल गया? आपको मिल गए नंबर ऑफ मोल्स मिल गए सोडियम के। ये तो मिला है नंबर ऑफ मोल्स। और 46 क्या है? 46 इज द गिवन मास। 46 हमारा गिवन मास है, ओके। और 23 हमारा क्या है? मोलर मास। 1 मोल सोडियम का जो मास है डेट इज कॉल्ड मोलर मास। सो इन ऑर्डर टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन एनी प्रॉब्लम, व्हाट यू हैव टू डू? You have to find the ratio of given mass to molar mass. You have to divide given mass with molar mass. What you will get? You will get number of moles. समझ आया? रटना नहीं है। यूनिटरी मेथड से मैंने आपको बताया कैसे रेशियो लेंगे और उस रेशियो को कैसे फॉर्मूले के टर्म्स में लिखेंगे। सो इन ऑर्डर टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ गिवन मास टू मोलर मास, दैट विल डन। चलिए तो ये फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। क्या करोगे? गिवन मास और मोलर मास का आप यहाँ पे, जो भी आपको मास गिवन है उसका रेशियो ले लोगे किससे? मोलर मास से। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कहेगा कि आपके पास 42 ग्राम नाइट्रोजन है। चलिए एक और मैं आपको प्रॉब्लम से समझाता हूँ। 42 ग्राम नाइट्रोजन। सो यू हैव 42 ग्राम नाइट्रोजन। तो 42 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल्स होंगे नाइट्रोजन के? सो फॉर्मूला क्या लगाओगे? अभी मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने किसके? नाइट्रोजन के। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास कितना है? 42 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। सो नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन? दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास विच इज 14। तो कितना होता है? 14 होता है। तो 14 3 जा 42. So how much mole is there? 3 moles. So 42 gram of nitrogen contains 3 moles of nitrogen because 1 mole of nitrogen is equal to 14 gram nitrogen. बहुत सिंपल है, थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ मोल समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम्स है। अगर आपको मेरा फ्लो चार्ट समझ आ गया, मेरी पिछली वीडियो समझ आ गई, तो आराम से आप इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हो। दीज आर वेरी बेसिक प्रॉब्लम, ओके। चलिए शुरू करते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। सो वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। शुरू कहां से करेंगे? अब देखिए आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और आपको गिवन क्या है? मास गिवन है। तो फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। निकाल सकते हो आप, या फिर यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। कैसे? 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड किसके इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल, बिकॉज 98 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होता है? 98 ग्राम होता है। अरे आप निकाल सकते हो, H2SO4 है ना,
तो हाइड्रोजन कितने, 2 हैं, 2 का मास 2 हो गया, सल्फर का मास 32 होता है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 4 का 64 हो गया। इन सबको ऐड करोगे तो आपका 98 आ जाएगा। ठीक है ना, जस्ट मॉलिक्यूलर मास ऐड करना है आपको। चलिए, सो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम 98 ग्राम लेते हो, सो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। तो 1 ग्राम कितने के इक्वल होगा, 1/98, और निकालना कितने का है, 4.9 ग्राम का। तो क्या करोगे, 4.9/98 कर दोगे, यू विल गेट 0.05 मोल। बहुत इजी है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो गिवन मास कितना है, गिवन मास इस क्वेश्चन में कितना है, यू हैव गिवन मास 4.9 ग्राम और मोलर मास कितना है, 98 है। इसको सॉल्व करोगे यू गेट 0.05 मोल। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल ऑफ सोडियम। हमें 0.5 मोल ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। ध्यान से समझना, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स यू हैव टू यूज द रिलेशन ऑफ एटम्स, मतलब यू हैव टू यूज द रिलेशन ऑफ मोल विद एटम। अब इस क्वेश्चन में आपको मोल का एटम्स के साथ रिलेशन यूज करना है, बिकॉज इन दिस प्रॉब्लम यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे सोडियम दे रखा है, तो 1 मोल सोडियम में कितने एटम होंगे, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें एटम निकालने हैं। तो अब हम 1 मोल को एटम्स के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। जब हमें किसी प्रॉब्लम में मास निकालना होता है तो हम मास के टर्म्स में डिफाइन करते हैं 1 मोल को, और जब किसी प्रॉब्लम में हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना होता है, सो इन दैट प्रॉब्लम वी विल डिफाइन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम। सो 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू हाउ मच, रटा हुआ है सबको, 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, है ना। तो 1 मोल ऑफ सोडियम कितना होगा, इतने एटम्स होंगे सोडियम के। अगर 1 मोल में इतना, तो आधे मोल में कितना, जस्ट मल्टीप्लाई विद 0.5 यू विल गेट योर आंसर। अरे एक पेंसिल 5 रुपए की, आधी पेंसिल, आधी पेंसिल का मतलब नहीं होता, एक पेंसिल 5 की है तो 2 पेंसिल कितने की होगी, 10 की होगी ना, मल्टीप्लाई करोगे ना। तो 1 मोल में इतने एटम, हाफ मोल में कितने एटम, दिस इज द क्वेश्चन। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम। एक नाइट्रोजन के एटम का मास निकालना है ग्राम में हमें। एक नाइट्रोजन के एटम का क्या मास होगा, देखिए एक एटम का मास निकाल लेंगे कब, जब हमें कुछ एटम्स का मास पता हो। जैसे मैं आपसे कहूंगा 4 एटम का मास इतना है, तो एक का कितना होगा, डिवाइड कर लोगे ना। एग्जैक्टली वही करने जा रहे हैं हम। अगर हमें कुछ एटम्स का मास पता लग जाए तो हम एक एटम का मास निकाल सकते हैं, और वो कुछ एटम क्या होते हैं यहाँ पे, 1 मोल ऑफ एटम। देखिए शुरुआत कहां से करेंगे, आपको पता है नाइट्रोजन का 1 मोल कितना होता है, 14 ग्राम, है ना। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू हाउ मच, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, विच इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 मोल नाइट्रोजन का 14 ग्राम होगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमें मास निकालना है एक एटम का, एक एटम का। तो हमें 1 मोल को डिफाइन करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एटम, देन ओनली वी कैन फाइंड द मास ऑफ 1 एटम। ओके, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जिस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, तो वहां पे 1 मोल का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ एटम आपको लेना होगा, देन ओनली यू कैन फाइंड। ठीक है, दीज थिंग्स यू हैव टू थिंक। ओके, फर्स्ट यू हैव टू थिंक दैट विच रिलेशन will you use to find this particular thing. So 1 mole of nitrogen equal to 14 gram of nitrogen. So 1 mole of nitrogen equal to how much, 6.022 into 10 to the power 23 atoms of nitrogen. तो 1 मोल नाइट्रोजन में कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे नाइट्रोजन के, और इनका मास कितना है, 14 ग्राम है। अब आ जाइए यूनिटरी मेथड, सिंपल मेथड। इतने एटम का मास 14 ग्राम है, एक एटम का मास कितना होगा, समझ आया, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम का मास 14 ग्राम है। तो एक एटम का मास कितना होगा, क्या करोगे, 14 से डिवाइड कर दोगे। सो आफ्टर डिवाइडिंग बाय 14 यू विल गेट 2.32 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम। सो व्हाट वी हैव डन, फर्स्ट वी हैव टेक 1 mole of nitrogen equal to 14 gram, and you know 1 mole of nitrogen contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms of nitrogen. So Avogadro number of nitrogen weighs 14 gram, so 1 atom will weigh, you can divide and simply get your answer. Okay, so now this is the last problem of this concept. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट NTP by 2.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, सो
हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 2.5 मोल है। सो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैविंग 2.5 मोल। अब देखिए अगर 1 मोल का पता लग जाए कि 1 मोल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी तो 2.5 मोल में निकालना तो बहुत आसान है यार, है ना। इफ यू नो 1 मोल ऑफ carbon dioxide will occupy this much volume, then it will become very easy to find how much volume will be occupied by 2.5 mole. So first देखिए हर क्वेश्चन में 1 मोल डिफाइन कर दो, बस आपका काम हो गया। मोल कंसेप्ट के हर प्रॉब्लम में फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन 1 मोल, एंड वंस यू डिफाइन 1 मोल देन योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। फिर आपको बस डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, जो कि सिंपल होता है, ठीक है। 1 मोल ऑफ CO2। अब देखिए मैंने आपको बताया था एक फ्लो चार्ट में जब गैस का केस लिया था, सो 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर एट नॉर्मल टेम्परेचर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। समझ आ रहा है। किसी भी गैस का अगर आप 1 मोल लेते हो, किसी भी गैस का अगर आप 1 मोल लेते हो तो वो हमेशा 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम। तो 1 मोल ऑफ CO2 कितना 22.4 लीटर, तो 2.5 मोल ऑफ CO2 कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2.5, व्हाट यू गेट 56 लीटर। तो अगर 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो 2.5 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 56 लीटर। सो इजी। अगेन व्हाट यू हैव डिफाइंड, फर्स्ट यू हैव डिफाइंड 1 मोल इक्वल टू हाउ मच लीटर, देन 2.5 मोल इक्वल टू 56 लीटर। देखिए मैंने आपको मोल कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बस आपको ये कुछ टर्म्स याद रखनी है, कुछ फॉर्मूलेज याद रखने हैं। 1 मोल याद रखना है कि 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, और 6.022 इतने पार्टिकल्स होते हैं, चाहे एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे फॉर्मूला यूनिट हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोल कंसेप्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, सो फील फ्री टू आस्क, और ठीक है यू कैन फील फ्री टू आस्क ऑन माई कमेंट सेक्शन। जो मेरा कमेंट सेक्शन है वहां पे भी आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो यूट्यूब के, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी आके मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।